हाय एवरीवन, वेलकम टू द क्लास में सभी का स्वागत है। वेलकम यू ऑल टू अनअकैडमी प्लस। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। Hi everyone, good morning. Please let me know if I'm audible and visible in the comment section please. बताएं अगर मैं audible हूँ, visible हूँ, so that we can start the session. Okay, audio video is clear? All right. So let's start the session. Session शुरू करते हैं without any delay. I welcome you all to this session. So today we are going to study the Gandhian movements. आज की क्लास में हम Gandhian movements पढ़ने वाले हैं. It's going to be a very important class, not just from GS paper 1's perspective, but also for your ethics perspective and your essay paper. Essay paper GS paper 4 के perspective से आज की क्लास काफ़ी important है. Today we are not just going to understand the Gandhian movements. We are also going to study the philosophy and ideals of Gandhi ji. We are also going to cover the philosophy and the ideals of Gandhi ji that he used during all these movements that we can still use in our day-to-day life, in our administration. Once you become an IAS officer, an IRS officer or an IPS officer, you'll be needing these philosophies and these ideals, these Gandhian ideas to carry out your administration smoothly, because Gandhi ji always focused on the welfare of the society. Okay, and you as an administrator are going to work for the welfare of the society, so you would be needing these philosophical ideas, these philosophical principles used by Gandhi ji in managing your administration, your district. Okay, so as an administrator we have to study Gandhian philosophies along with the movements that he carried out. Okay, so before we start this session, here's a small announcement for all of you. 28th दिसंबर से अनअकैडमी पर बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं. फ्रॉम 28th of December the batches are starting from on Unacademy Plus, and these batches are dedicated for your 6-month preparation if you are preparing for 2021, 1-year preparation batch if you are preparing for 2022, and 2-year preparation batch if you are preparing for 2023. Okay, 3 batches have been launched by Unacademy Plus. I am taking the history sessions. Okay, ancient, medieval, modern Indian history. I am going to take the sessions. ठीक है, even I could target the world history also in the batches in the month of February. So I could target world history also, but ancient, medieval, modern I am taking. ठीक है, both in Hindi also, English also. So there are 3 batches and in 3 languages they have been launched: Hindi language, English language and bilingual. So if you are really interested, after watching these demo sessions, you think that yes, the educators on Unacademy can help you in strengthening your preparation, then you can subscribe to Unacademy Plus. किसी एक बैच में आप सब्सक्राइब कर सकते हो, either 1-year batch, 2-year batch और 6-month batch. ठीक है, it's on you. We are guaranteeing that we are going to help you complete your syllabus within time, and prelims test series will be given, PDF study material will be provided, doubt clearing sessions will be there, interview preparation भी करवाई जाएगी. So if you are interested in joining any of these batches, you can use this code Sharma20 and get 10% discount on your Unacademy Plus subscription. ये जो कोड है इसको यूज़ करके इजीली 10% का डिस्काउंट आपको Unacademy Plus के सब्सक्रिप्शन पर मिल जाएगा. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद स्पेक्ट्रम PYQ सीरीज. गांधीयन मूवमेंट से हम स्टार्ट करने वाले हैं. ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास. नाउ वी हैव टू स्टडी द फर्स्ट मेजर मूवमेंट. सबसे पहले ना हमें कुछ मेजर मूवमेंट्स पढ़ने हैं महात्मा गांधी जी के द्वारा लॉन्च किए हुए. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू स्टडी द मेजर मूवमेंट्स. We are going to focus on major movements that helped India in achieving its freedom, that helped India in the freedom struggle. So we are going to start with the major movements, and these major movements are important for your prelims also. ये major movements आपके prelims के लिए काफ़ी important है. ठीक है, so let's start. शुरू करते हैं. When we talk about Mahatma Gandhi ji, he is known for his non-violent protest. इनके बारे में कौन सा ऐसा फीचर है जो बहुत फेमस है? व्हाट इज दैट वन फीचर दैट इज वेरी फेमस अबाउट महात्मा गांधी जी? दैट इज हिज नॉन वायलेंस फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट. दैट इज द वन फेमस फीचर, नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट. ठीक है, दैट इज वाई ही बिकेम द लीडिंग
you can say leader or leading symbol or face of the freedom struggle. Now always in you know, at any time, at any phase, in any year, whenever he used to launch any particular movement, any particular struggle, he always requested the masses to lead the struggle, to carry out the struggle without any violence. जब भी वो कोई भी मूवमेंट चालू करते थे वो रिक्वेस्ट यही करते थे कि वायलेंस के बिना होना चाहिए वो, ठीक है. एंड महात्मा गांधी जी इज ऑल्सो नोन एज द ट्रू इंस्पिरेशन, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है. नॉट फॉर द पास्ट जनरेशन बट ऑल्सो फॉर द फ्यूचर जनरेशन. स्टिल टुडे वी आर यूजिंग हिज फिलोसफीज, हिज आइडियल्स टू स्प्रेड बेटर गवर्नेंस, एफिशिएंट गवर्नेंस, ठीक है. सो द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट, देखो महात्मा गांधी जी का मूवमेंट या मास मूवमेंट का तरीका पढ़ने से पहले वी शुड नो दैट इन विच ईयर और इन विच फेज ही स्टार्टेड हिज मूवमेंट्स, ठीक है. सो ही स्टार्टेड हिज मूवमेंट्स नॉट इन इंडिया. द ओरिजिनल मूवमेंट्स दैट ही स्टार्टेड वर इन साउथ अफ्रीका, ठीक है. जो इन्होंने ओरिजिनल मूवमेंट स्टार्ट किए थे वो इंडिया से नहीं, साउथ अफ्रीका से स्टार्ट किए थे. सो ओवर हियर यू विल राइट दैट द पीरियड 1906 to 1907, ये जो पीरियड है, he started first time the सत्याग्रह and it was started in South Africa. सत्याग्रह, ये जो ब्रांड है ना, दिस ब्रांड सत्याग्रह, did not originate in India. ये इंडिया में ओरिजिनेट नहीं हुआ था. दिस ब्रांड ऑफ सत्याग्रह ही लॉन्च्ड इट इन साउथ अफ्रीका, ठीक है. साउथ अफ्रीका में इसको लॉन्च किया गया था. वाई? राइट इट डाउन. against the compulsory registration and passes for Indians. पॉइंट क्लियर हो रहा है सभी को. ट्रैवल पासेस जो हुआ करते थे, रजिस्ट्रेशन हुआ करती थी, ठीक है. तो फॉर इंडियंस इसके लिए कंपल्सरी हुआ करता था. सी द यूरोपियंस और द पीपल ऑफ अफ्रीका, द नेटिव्स ऑफ अफ्रीका, दे कैन रूल, यू नो, गो अराउंड, ट्रैवल अराउंड फ्रीली. बट फॉर इंडियंस वी हैड रिस्ट्रिक्शंस. इंडियंस के लिए ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस भी थी. प्लस इन वाइल ट्रैवलिंग ऑल्सो देवर रिस्ट्रिक्शंस इन सीटिंग अरेंजमेंट. सीटिंग अरेंजमेंट में भी रिस्ट्रिक्शंस था. हमें फर्स्ट क्लास में ट्रैवल ही नहीं करने दिया जाता था. वी वर नॉट इवन अलाउड टू ट्रैवल इन द फर्स्ट क्लास compartments, right? So that is why he launched this satyagraha movement in South Africa. Now when we look at satyagraha, satya means truth. सत्य का मतलब क्या होता है? सच्चाई, ठीक है. So he always used to say that what is true I'm going to stand for it, and what is untrue I'm going to stand against it. जो सच है, जो सही है, मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा, और जो सच नहीं है मैं उसके अगेंस्ट रहूंगा. सत्याग्रह मीन्स द पाथ लीडिंग टू द ट्रूथ, ठीक है. पॉइंट क्लियर. Now in 1910, now comes the year of 1910. So he announced another brand of सत्याग्रह. यहाँ पर फिर से लिखिए कि इन्होंने फिर से सत्याग्रह को अनाउंस किया. He also announced again, for the second time he announced सत्याग्रह for what? Against the immigration and restriction over Indians in South Africa. So whatever slavery, whatever oppression we were facing in South Africa, ठीक है, and not just Indians, the black people also. सिर्फ Indians ही नहीं, जो जिनका वर्ण जो था वो काला था, black people जो थे, उनके अगेंस्ट भी जिस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस थे, इमिग्रेशन रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस, ट्रैवल रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस, अगेंस्ट ही लॉन्च्ड अनदर ब्रांड ऑफ सत्याग्रह in 1910 in South Africa. So South Africa is the place which witnessed the सत्याग्रह फीचर ऑफ महात्मा गांधीज मूवमेंट्स. महात्मा गांधी जी के जो मूवमेंट्स है वो सत्याग्रह पे बेस्ड थे. तो ये फीचर सबसे पहले किसने विटनेस किया? साउथ अफ्रीका ने. लेटर ऑन इंडिया ऑल्सो सॉ ऑल दीज मूवमेंट्स, बट द फर्स्ट कंट्री टू विटनेस महात्मा गांधीज फीचर्स ऑफ मास मूवमेंट्स वाज साउथ अफ्रीका. ये बात सबको क्लियर रहेगी. देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु हैव नो आइडिया अबाउट इट. ये पता ही नहीं है, बस उनको ये पता है कि येस इन साउथ अफ्रीका महात्मा गांधी जी वॉज अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. दे डोंट नो दैट सत्याग्रह ओरिजिनेटेड इन साउथ अफ्रीका. देयर आर मेनी स्टूडेंट्स, ठीक है. क्लासेज में व्हेन आई टेक प्लस बैचेस, ठीक है, तो उसमें काफ़ी पता चलता है कि बच्चों को नॉलेज ही नहीं है कि कब शुरू हुआ है सत्याग्रह, ठीक है, कहाँ शुरू हुआ है सत्याग्रह. एवरीबडी दे बिलीव्स, मोस्टली एवरीवन बिलीव्स दैट इट स्टार्टेड इन इंडिया ओनली. नो, इट स्टार्टेड फ्रॉम साउथ अफ्रीका, ठीक है. ऐसा माना जाता है कि महात्मा गांधी जी ही वॉज अ मैन ऑफ एक्शन. गांधी जी जो थे वो मैन ऑफ एक्शन थे. what do you mean by the word man of action? Man of action means who does not believe in speaking much. He believes in his karmas, in his actions,
इन हिज एक्ट्स, ठीक है। तो जो सिर्फ बोलते नहीं हैं, जो करके दिखाते हैं, वो होते हैं मैन ऑफ एक्शन, ठीक है। तो गांधी जी वॉज ऑल्सो नोन एज द मैन ऑफ एक्शन। नाउ व्हेन ही केम टू इंडिया इन 1915, जब 1915 में, बिकॉज गांधी जी व्हेन ही लुक्ड एट द कंडीशन ऑफ इंडियंस इन साउथ अफ्रीका, ही वॉज मूव्ड, ठीक है, वेरी डीपली. So he thought that in South Africa, if the Indians are suffering so much, ठीक है, so what must they be suffering in India and what kind of operation they must be handling in India. अगर साउथ अफ्रीका में इस तरीके की उनके ऊपर ऑपरेशन हो रही है तो इंडिया में क्या हो रहा होगा. So that is why he returned from South Africa in India at the age of 43 or 44 in the year 1915. 1915 में भारत आते हैं. एंड व्हेन ही स्टेप्ड इनटू इंडिया ना, ही डिक्लेयर्ड इट दैट आई एम नॉट गोइंग टू बी एसोसिएटेड विद एनी पॉलिटिकल पार्टी. मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ खुद को जोड़ने वाला नहीं हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू बी एसोसिएटेड विद एनी पॉलिटिकल पार्टी. Point clear? This was his words. And from 1915 till 1917, he said, I am going to understand the plight of the people. I am going to understand the situation of the people or the situation of the farmers or Indians. ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर क्या सिचुएशन है, लोग क्या फील कर रहे हैं, मैं उसको समझने वाला हूँ. Especially the farmers, because he had heard that farmers were the one who were being most oppressed by the Britishers. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को. तो उनको यही लगा, गांधी जी को यहाँ आकर यही लगा कि भाई यहाँ पर आ तो गए हैं, ठीक है, बट जब तक लोगों को समझेंगे नहीं, लोगों को पढ़ेंगे नहीं, लोगों से पूछेंगे नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि क्या करना है फ्यूचर में. इफ वी डू नॉट अंडरस्टैंड द सिचुएशन, इफ वी डू नॉट अंडरस्टैंड द प्लाइट ऑफ द फार्मर्स, देन हाउ विल आई मेक एनी एक्शन प्लान, हाउ विल आई इम्प्लीमेंट इट. सो दैट इज वाई ही सेड आई एम गोइंग ऑन अ टूर. मैं एक तरीके के टूर पे जा रहा हूँ इंडिया में ही. In India, I am going to take a tour to understand the situation of farmers. And he always used to have a diary with him so that he can write down the issues which are faced by the farmers. उनके पास हमेशा एक डायरी हुआ करती थी जिससे पता चलता था कि उनके पास जो सिचुएशंस होती थी फार्मर्स की, वो लिख लिया करते थे. जो चैलेंजेस और इश्यूज हुआ करते थे वो लिख लिया करते थे. सो नाउ ओवर हियर यू विल सी that 1915 to 1917 is the period when he was going on a tour, ठीक है, टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ इंडियंस. एंड ओवर हियर इन 1917 वी सी द फर्स्ट ब्रांड ऑफ सत्याग्रह इन इंडिया. 1917 में पहली बार हमने सत्याग्रह का ब्रांड देखा इंडिया में. दैट वॉज ड्यूरिंग द चंपारण सत्याग्रह. वो हमने देखा चंपारण सत्याग्रह में. नाउ ही वॉज नॉट प्लानिंग टू लॉन्च एनी काइंड ऑफ सत्याग्रह इन चंपारण, ठीक है, बट ही वॉज फोर्स्ड बाय राजकुमार शुक्ला. राजकुमार शुक्ला जी, ही वॉज इंसिस्टिंग, right, that please visit Champaran in Bihar and look at the situation, the plight of the farmers. They are suffering a lot. They are forced to grow indigo. इनको indigo grow करने के लिए बहुत मजबूर किया जा रहा है. Please come to, and if you do not want to launch any movement, no issues, but just hear them out. उनको सुन लो एक बार आकर. So गांधी जी, ठीक है, on the insistence of राजकुमार शुक्ला, who was also a indigo planter himself, खुद भी एक फार्मर थे, अपने एरिया में ले गए, चंपारण लेकर गए, ठीक है. एंड ऑन द इंसिस्टेंस ऑफ राजकुमार शुक्ला जी, ही वेंट विद हिम, ठीक है, एंड ही वेंट टू चंपारण एंड ही अंडरस्टूड द सिचुएशन ऑफ द फार्मर्स, ठीक है. वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि फार्मर्स की सिचुएशन को समझने की कोशिश की, ठीक है. एंड व्हेन ही अंडरस्टूड द सिचुएशन ही सेड ओके, आई एम गोइंग टू लॉन्च अ सत्याग्रह ओवर हियर. मैं यहाँ पर सत्याग्रह लॉन्च करने वाला हूँ. सो चंपारण इज अ डिस्ट्रिक्ट. चंपारण क्या है? इट्स अ डिस्ट्रिक्ट विच इज इन बिहार. कहाँ पर है ये डिस्ट्रिक्ट? बिहार में है, ठीक है. एंड हियर गांधी जी वेंट टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ इंडिगो कल्टिवेटर्स, ठीक है. इंडिगो कल्टिवेटर्स, इंडिगो एक तरीके का ब्लू डाई हुआ करता था, नील जिसको हम कहते हैं, ठीक है. तो इसको कल्टिवेट करने से पीछे काफी चैलेंजेस होते थे. देयर वर मेनी चैलेंजेस इफ यू आर कल्टिवेटिंग इंडिगो. व्हाई? बिकॉज इफ यू आर कल्टिवेटिंग इंडिगो, so in Champaran, which is a district in Bihar, indigo cultivators were having a very hard time. They were being forced to grow indigo, which is also known as neem, जिसको यहाँ पर blue dye मैंने लिखा है. It used to render the land infertile, and there was a system, oppressive system, ठीक है, which was known as Tinkatia system. इसको हम बोलते थे Tinkatia system. What is Tinkatia system? That the farmers have to cultivate the indigo crop on 3/20th part of their land. अपने ज़मीन के 3/20वें हिस्से पर उनको इंडिगो, नील जो है वो कल्टीवेट करना है,
ठीक है, एंड दे वर फोर्स्ड टू वट एवर इंडिगो दे हैव कल्टिवेटेड, दे वर फोर्स्ड टू, राइट इट डाउन, दे वर फोर्स्ड टू सेल इट एट अ चीपर प्राइस। एक तो वो अपने ज़मीन के उस हिस्से को इनफर्टाइल बना रहे हैं, ऊपर से उसको बहुत सस्ते में बेचना है, ठीक है, ब्रिटिश ट्रेडर्स को। एंड ब्रिटिश ट्रेडर्स क्या करेंगे, बाहर इंडिगो बेचेंगे, वो भी बड़े डबल, दुगने प्राइस पर। So the British traders used to purchase indigo from the farmers at a very cheaper price. They used to sell it outside at a very higher price, that is double the profit they used to earn from it. ठीक है, this was the Tinkhatiya system, and the farmers they were losing the productivity of the land also plus the money also. पैसा तो वो जा ही रहा था, लैंड की प्रोडक्टिविटी भी जा रही थी। दिस वॉज दी यू कैन से सिचुएशन ऑफ दी चंपारण फार्मर्स, ये सिचुएशन थी चंपारण फार्मर्स की। सो महात्मा गांधी जी व्हेन ही रीच्ड चंपारण 1917, he adopted the approach of, write it down, he adopted the approach of civil disobedience movement, CDM. CDM means civil disobedience movement. इन्होंने चंपारण सत्याग्रह में, सत्याग्रह is the path of truth, ठीक है, एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज द मेथड, ये वो मेथड था जो यूज किया गया चंपारण सत्याग्रह के दौरान, ठीक है। व्हाट ही डिड, ही लॉन्च्ड डेमोन्स्ट्रेशंस, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशंस। डेमोन्स्ट्रेशंस मींस जब आप पीसफुली हाथ में बोर्ड लेकर प्रोटेस्ट करते हो, लड़ाई नहीं कर रहे, दंगा नहीं कर रहे, बस आप स्लोगन्स रेस कर रहे हो, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया सभी को। So here the civil disobedience movement was launched in Champaran Satyagraha. Demonstrations against the landlords, against the British traders were also launched, and as a result, because Gandhiji was new to India, so as a result, and he was a lawyer also, so Britishers they thought if we accept the demands of Gandhiji, maybe in the future he can help us, he can be on our side. तो Britishers को ये लगा कि अगर हम क्या करें, अगर हम गांधी जी की डिमांड को एक्सेप्ट कर लें तो हो सकता है फ्यूचर में गांधी जी हमारी साइड पर आ जाएं। सो द ब्रिटिश गवर्नमेंट इट एक्सेप्टेड, राइट, द डिमांड ऑफ चंपारण फार्मर्स, डिमांड ऑफ गांधी जी, एंड तिनकटिया सिस्टम वाज अबॉलिश्ड। इसीलिए तिलकटिया सिस्टम जो था वो अबॉलिश कर लिया गया, एंड दिस सत्याग्रह वाज अ सक्सेस। ये जो सत्याग्रह था ये सक्सेसफुल सत्याग्रह मालूम पड़ा, या it turned out to be a success, ठीक है। इट वॉज द फर्स्ट सक्सेस दैट गांधी जी हैड इन इंडिया। इंडिया में गांधी जी की सत्याग्रह मूवमेंट की पहली सक्सेस की झलक थी चंपारण सत्याग्रह। पॉइंट इज क्लियर, प्लीज लेट मी नो। सो यू हैव टू रिमेंबर तिनकटिया सिस्टम इज एसोसिएटेड विद विच सत्याग्रह, विद चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट सत्याग्रह। अब नेक्स्ट सत्याग्रह की बात करते हैं, दैट इज द खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है। दिस इज द नेक्स्ट सत्याग्रह जिसको हम बोलेंगे खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है। टाइम पीरियड इज 1917 to 1918. Now the years are very important for prelims because they will ask you to chronologically arrange the events, ठीक है। अगर आपको ईयर नहीं पता होगा तो आप टाइमली क्रोनोलॉजिकली नहीं अरेंज कर सकते, ठीक है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द खेड़ा सत्याग्रह, नाउ राइट इट डाउन, दिस वाज अ नो टैक्स कैंपेन। ये क्या था, ये एक नो टैक्स कैंपेन हुआ करता था, एंड इट वॉज स्टार्टेड बाय, किसने इसको स्टार्ट किया था कैंपेन को, दिस नो टैक्स कैंपेन वॉज स्टार्टेड बाय मोहनलाल पांडे, ठीक है। स्टार्टेड बाय, राइट इट डाउन, मोहनलाल पांडे, ठीक है। इन विच ईयर, इन 1917, ठीक है। नाउ व्हाट वाज द डिमांड ऑफ मोहनलाल पांडे जी, इनकी डिमांड क्या थी, तो हिज डिमांड वॉज, राइट इट डाउन, हिज डिमांड वॉज रेमिशन ऑफ यानी कि कैंसिलेशन ऑफ टैक्सेस due to poor harvest or due to crop failure in the Kheda village. Where is Kheda village? It is in Gujarat. कहाँ पर है खेड़ा विलेज, खेड़ा विलेज है गुजरात में, ठीक है। सो ही डिमांडेड फ्रॉम द ब्रिटिशर्स दैट यू शुड नॉट टेक टैक्सेस फ्रॉम अस इफ देयर इज क्रॉप फेलियर इन द विलेज और बिकॉज ऑफ पुअर हार्वेस्ट, यानी कि क्लाइमेटिक कंडीशन के वजह से हार्वेस्ट अच्छी नहीं हुई है, बिकॉज ऑफ सम सर्टन क्लाइमेटिक कंडीशंस हार्वेस्ट इज नॉट गुड इन अ पर्टिकुलर सीजन और द क्रॉप हैज फेल्ड, इन दैट केस द ब्रिटिश गवर्नमेंट शुड नॉट टेक टैक्सेस फ्रॉम अस, ठीक है। पॉइंट क्लियर। तो ये थी डिमांड मोहनलाल पांडे जी की 1917 में, एंड महात्मा गांधी जी वॉज इन्वाइटेड इस नॉन टैक्स कैंपेन में, इन दिस नॉन टैक्स कैंपेन मोहनलाल पांडे जी ही इन्वाइटेड एमजी, दैट इज महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी वॉज इन्वाइटेड, इनको इन्वाइट किया गया, ठीक है। एंड व्हेन ही वॉज इन्वाइटेड ही जॉइंड द मूवमेंट ऑन 22nd of March 1918,
So it started in 1917 and on 22nd March 1918 महात्मा गांधी जी joined this movement. इन्होंने भी इस movement को join कर लिया. Therefore we say that सत्याग्रह in Kheda district in Kheda village started on 22nd March 1918 when गांधी जी joined this movement. जब गांधी जी ने इस movement को join किया तो ये campaign सत्याग्रह में convert हो गया. This campaign got converted into सत्याग्रह. ठीक है, point clear? So here वल्लभ भाई पटेल जी also joined. इसी मूवमेंट को वल्लभ भाई पटेल जी ने भी ज्वाइन किया. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट. ठीक है, वल्लभ भाई पटेल ही ऑल्सो ज्वाइंड एंड फाइनली द डिमांड्स ऑफ मोहनलाल पांडे जी, ठीक है, इट वॉज फुलफिल्ड, ठीक है, बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. सो अगेन खेड़ा सत्याग्रह वॉज अ सक्सेसफुल सत्याग्रह. खेड़ा सत्याग्रह जो था वो भी एक सक्सेसफुल सत्याग्रह बना. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया. शिवा प्रताप, इंग्लिश गलत है आपकी इसमें. महात्मा गांधी जी वॉज एसोसिएटेड बाय वल्लभ भाई पटेल, नहीं, ही वॉज ज्वाइंड बाय वल्लभ भाई पटेल. ठीक है, सपोर्टेड बाय वल्लभ भाई पटेल इन दिस मूवमेंट. क्लियर. चलो, खेड़ा सत्याग्रह अगर क्लियर हो गया है तो आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ द थर्ड आपका हो जाएगा द खिलाफत मूवमेंट. द थर्ड मेजर इंपॉर्टेंट मूवमेंट इज द खिलाफत मूवमेंट. ठीक है. Now when we talk about Khilafat movement, the year is 1919. It is associated with the Ali brothers. ठीक है, when we talk about the Khilafat movement, it was started by, किसने इसको start किया था? It was started by the Ali brothers. The Ali brothers, they started this movement. ठीक है, why? To show protest, write it down, to show protest against the unjust which was done with the Turkey religious leader और कैलिफ, जिसको हम कैलिफ भी बोलते हैं, after the First World War. After the First World War, what did the Britishers do? They removed the Sultan of Turkey. ठीक है, इन्होंने क्या किया? टर्की के जो सुल्तान हैं उनको रिमूव कर दिया. What happened that after the First World War के बाद क्या हुआ कि द सुल्तान ऑफ टर्की ही वॉज कंसिडर्ड एज द रिलीजियस लीडर ऑफ ऑल द मुस्लिम्स वर्ल्ड वाइड. सभी जितने भी मुस्लिम्स हैं ना वर्ल्ड में, वो सब अपने रिलीजियस लीडर किसको मानते थे? टर्की के सुल्तान को, खालिफ को, जिसको हम कैलिफेट भी बोलते हैं. ठीक है, एंड दिस Sultan of Turkey was removed from the position by the Britishers after First World War. So the Muslims worldwide, they were very angry with this action of the Britishers. Especially in India, the Muslims were very angry. India में Muslims काफ़ी गुस्सा थे कि how can they disrespect our religion? हमारे religion की disrespect कैसे कर सकते हैं? ठीक है. So the Ali brothers, they launched the protest against the Britishers. And गांधी जी जो है, इन्होंने इस protest को support किया. He supported this protest, or you can say he participated in this protest. इस protest में उन्होंने participate किया. So here you can write, इधर आप लिख सकते हो that महात्मा गांधी जी, that is MG, ठीक है, he extended his support, ठीक है, to the Ali brothers. Ali brothers को अपना support दिया. ठीक है, point clear. And under the guidance, we will not say that महात्मा गांधी जी was the leader. ठीक है, दिस इज वेरी रॉन्ग टू से दैट महात्मा गांधी जी वॉज द लीडर बिकॉज यू आर स्नैचिंग अवे द क्रेडिट फ्रॉम द अली ब्रदर्स. आप ये कहना चाह रहे हो कि अली ब्रदर्स ने तो कुछ नहीं किया, महात्मा गांधी जी लीडर बन गए. नहीं, अली ब्रदर्स के लीडरशिप में ये मूवमेंट था, बट द गाइडेंस was also coming from Mahatma Gandhi ji. So he was giving his guidance. So now over here, under Mahatma Gandhi ji's guidance, this movement was expanded. इस movement को बढ़ाया गया. ठीक है, and here All India Conference, write it down. The All India Conference was also launched in Delhi. कहाँ पर हुई थी ये कॉन्फ्रेंस? दिल्ली में हुई थी. Where महात्मा गांधी जी was elected as the president. इनको प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया in this All India Conference. ठीक है, why president? Because his guidance, his support was required and Ali brothers made महात्मा गांधी जी the president. ठीक है, तो कोई भी हमें फर्दर स्टेप लेना है, हम किसके सजेशंस लेंगे, किसके गाइडेंस लेंगे? गांधी जी की गाइडेंस लेंगे. ठीक है, पॉइंट क्लियर. एंड अंडर दिस मूवमेंट ओनली गांधी जी रिटर्न्ड ऑल हिज मेडल्स बैक टू ब्रिटिशर्स. ब्रिटिशर्स ने जो भी मेडल्स गांधी जी को दिए थे ना, सारे मेडल, सारी डिग्रीज वापस कर दी. एंड खिलाफत मूवमेंट वॉज अ सक्सेस. ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट ओनली महात्मा गांधी जी बिकेम द नेशनल लीडर.
क्योंकि उन्होंने खिलाफत मूवमेंट में अली ब्रदर्स को सपोर्ट किया और उनके सपोर्ट के बाद ये मूवमेंट सक्सेस हो गया, इसलिए गांधी जी को नेशनल लीडर के नाम से जाना जाने लगा कि अब हमारे नेशन में जो भी मूवमेंट्स होंगे हम किसको लीडर बनाएंगे, महात्मा गांधी जी को. वॉट एवर मूवमेंट्स वी विल हैव नाउ इन फ्यूचर इन इंडिया फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल, आवर लीडर विल बी महात्मा गांधी जी ओनली. ठीक है, पॉइंट क्लियर. सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. ठीक है, नाउ वी हैव नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. अब हमारे पास आता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. ठीक है, सो व्हेन वी टॉक अबाउट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, when we talk about non-cooperation movement, before it we had studied about civil disobedience movement. Now इससे पहले हमने चंपारण में पढ़ा था civil disobedience movement. What was civil disobedience movement? It was a movement which showed that we are not going to obey the Britishers. हम Britishers को obey नहीं करने वाले. ठीक है, they will ask for taxes, we will just give them a namaskar and we will move ahead. हम उनको नमस्कार करेंगे, आगे जाएंगे, we are not going to pay any taxes to them. ठीक है, that was civil disobedience movement, but it was not nationwide movement. CDM nationwide नहीं था, ये तो आप सभी को पता है. It was in चंपारण only. ठीक है, so with common sense you can understand. थोड़ा सा common sense use करेंगे आपको पता चल जाएगा. Non cooperation movement nationwide था, CDM was restricted to चंपारण. पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है? So this is the basic difference that you can understand if you study CDM of Champaran and non-cooperation movement of India. ठीक है, पॉइंट क्लियर. सो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इट वाज कंडक्टेड इन 1920, 1920 में ये मूवमेंट हुआ. ठीक है, एंड इट वाज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी जी. किसने लॉन्च किया? एंड द अदर बेसिक डिफरेंस बिटवीन CDM ऑफ चंपारण एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इज दैट इन चंपारण इट वाज ओनली टारगेटिंग द फार्मर्स. यस और नो? चंपारण में जो CDM लॉन्च हुआ था वो सिर्फ फार्मर्स को टारगेट कर रहा था. दिस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विच वाज नेशन वाइड, इट वाज नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू फार्मर्स. ये सेकंड डिफरेंस है. दिस इज द सेकंड डिफरेंस. ठीक है, 1920 का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सिर्फ फार्मर्स को टारगेट नहीं कर रहा था, इट वाज टारगेटिंग एवरीबडी, एवरी सिविलियन इन इंडिया. ठीक है, एंड दिस मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय गांधी जी. व्हाई? बिकॉज ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर. ठीक है, ड्यू टू द जलियांवाला बाग मैसेकर. एंड महात्मा गांधी जी थॉट दैट इफ वी कंटिन्यू दिस मूवमेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कम से कम हम 2-3 साल इस मूवमेंट को अगर चला लें तो हो सकता है कि 2-3 साल बाद हमें इंडिपेंडेंस मिल जाए. ठीक है, ही वॉज वेरी होपफुल दैट इफ we if we do not cooperate with Britishers, ठीक है, if we return back all the honors, all the degrees, all the jobs, all the opportunities given to us by the Britishers and do not cooperate with them, then within 2-3 years we can attain freedom. But what happened? हुआ क्या? चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया. The चौरी चौरा इंसिडेंट took place in which, see, when he launched this movement he requested everybody to use non-violence as a tool. ठीक है, एज अ वेपन. जब इन्होंने ये मूवमेंट लॉन्च किया था, इन्होंने कहा था आपको नॉन वायलेंस को अपना वेपन बनाना है, हथियार बनाना है. ठीक है, बट व्हाट हैपेंड इन 1922, चौरी चौरा इंसिडेंट टुक प्लेस wherein there was a large scale violence that took place. An entire police station was burned. पूरा एक बड़ा सा पुलिस स्टेशन इंडियंस ने जला दिया. ठीक है, एंड 22 पुलिसमैन डाइड, 3 सिविलियंस डाइड. 22 तो पुलिसमैन मरे थे उसमें और 3 सिविलियंस जो नॉर्मल पब्लिक होती है, जनता होती है, उनकी डेथ हुई थी. बिकॉज ऑफ विच गांधी जी वॉज वेरी अपसेट एंड ही कॉल्ड ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. तो 1922 के दौरान इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया, यानी कि कैंसल कर दिया. ही वॉज रिक्वेस्टेड बाय मेनी लीडर्स नॉट टू टेक दिस स्टेप. ठीक है, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन स्मूथली, डू नॉट कैंसल द मूवमेंट. बट गांधी जी सेड दैट इंडियंस आर नॉट रेडी राइट नाउ. ठीक है, दे आर नॉट ट्रेन्ड राइट नाउ. अभी इंडियंस रेडी नहीं है, ट्रेंड नहीं है. वी नीड टू ट्रेन इंडिया. ठीक है, वी नीड टू मेक पीपल अंडरस्टैंड व्हाट इज नॉन वायलेंस. हमें लोगों को समझाना है कि नॉन वायलेंस क्या है. दे डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज नॉन वायलेंस. दे डू नॉट कंट्रोल, दे कैन नॉट कंट्रोल देयर इमोशंस. ठीक है, सो ही वांटेड अ पीसफुल मूवमेंट बट इट गॉट कन्वर्टेड इनटू अ वायलेंट मूवमेंट. सो दैट इज व्हाई दिस मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ. सो इट इज अ अनसक्सेसफुल मूवमेंट. ये एक अनसक्सेसफुल मूवमेंट कहलाया जाता है. ठीक है, पॉइंट क्लियर. बट इट इज सेड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के ऊपर GS पेपर 1 में क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, इट इज सेड दैट द क्वेश्चन कैन बी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज सक्सेसफुल आफ्टर बीइंग अनसक्सेसफुल. ठीक है, एक्सप्लेन. आपसे क्वेश्चन में बोलेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज सक्सेसफुल आफ्टर बीइंग अनसक्सेसफुल, एक्सप्लेन. हाउ विल यू एक्सप्लेन दैट?
नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टॉट अस द वैल्यू ऑफ नॉन वायलेंस। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ने हमें बताया कि नॉन वायलेंस की वैल्यू क्या होती है, इफ यू आर नॉट वायलेंट व्हाट यू कैन अचीव, ठीक है। सेकेंडली, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एक्सप्लेन्ड टू अस और मेड अस रियलाइज दैट वी नीड टू कंट्रोल आवर इमोशंस, ठीक है, बिकॉज इफ आवर इमोशंस आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल वी कैन टेक एनी स्टेप अनमाइंडफुली। अगर हमारे इमोशंस हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम कुछ भी करने लगेंगे अनमाइंडफुली। पॉइंट क्लियर हो रहा है? एंड व्हेन वी कमिट एनी एक्ट अनमाइंडफुली इट रिजल्ट्स इनटू फेलियर। जब बिना सोचे समझे आप कुछ भी करते हो ना, उसका रिजल्ट हमेशा खराब ही होता है, ठीक है। द रिजल्ट इज ऑलवेज ऑपोजिट इफ वी आर डूइंग एनीथिंग विदाउट गिविंग इट अ प्रॉपर थॉट, ठीक है। सो इट ऑल्सो मेड अस रियलाइज दैट वी नीड टू ट्रेन आवरसेल्व्स। हमें अपने आप को ट्रेन करने की ज़रूरत है। ये हमें इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ने ही सिखाया, ठीक है। एंड ऑल्सो दिस मूवमेंट टॉट अस दैट हाउ बैड वायलेंस कैन बिकम इन द पाथ ऑफ योर सक्सेस। अगर आप सक्सेस की राह पर चल रहे हो और आप वहाँ पर वायलेंस यूज करते हो तो आप ही पर उल्टा पड़ेगा। इट विल कॉस्ट यू अ लॉट इफ यू आर यूजिंग वायलेंस इन योर पाथ ऑफ सक्सेस। So that is why we say that non-cooperation movement was a movement through which we learnt a lot of things. Non-cooperation movement ने Indians को Indians के बारे में ही काफ़ी कुछ सिखाया, ठीक है। We came to know about our own nature, our own behavior, ठीक है, our own loopholes, our own flaws, ठीक है। That is why it is successful after even being unsuccessful, ठीक है। अगर हम देखें प्रैक्टिकली तो ये अनसक्सेसफुल था, बट ऑन अ फिलोसफिकल लेवल इट वाज अ सक्सेसफुल मूवमेंट बिकॉज वी केम टू नो अबाउट आवर ओन फ्लॉज, क्योंकि हमें अपनी खुद की गलतियों के बारे में पता चला। तो ऐसे एक्सप्लेन कर लोगे, जल्दी से बताओ, ठीक है। यू कैन एक्सप्लेन नाउ दिस टॉपिक, ठीक है। अब क्या होता है, अनदर मूवमेंट इन 1930 केम अप। 1930 में एक और मूवमेंट आता है जिसको हम बोलते हैं नेशन वाइड, दिस इज नोन एज नेशन वाइड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। नाउ इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू अ विलेज और अ डिस्ट्रिक्ट, इट इज नेशन वाइड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नाउ देयर वाज अ न्यूज़पेपर, उस टाइम पर एक न्यूज़पेपर हुआ करता था एंड द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर वाज यंग इंडिया, ठीक है। सो इन यंग इंडिया इन 1930 इन द मंथ ऑफ मार्च 1930, मार्च के महीने में 1930 के मंथ में, ठीक है। सो दिस न्यूज़ क्लिपिंग ऑफ गांधी जी केम अप। गांधी जी की एक न्यूज़ क्लिपिंग निकल कर आई दैट ही इज प्लानिंग टू लॉन्च नेशन वाइड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। तो नेशन वाइड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हम लॉन्च कर रहे हैं, ऐसी अनाउंसमेंट गांधी जी की तरफ से आई, ठीक है। एंड मेनी अदर मैगजीन्स, मेनी अदर न्यूज़पेपर हैड दिस सेम अनाउंसमेंट। जब लोगों ने पढ़ा, ही अंडरस्टूड ओके दिस इज द अनाउंसमेंट डन बाय महात्मा गांधी जी एंड ही सेड देयर आर सम डिमांड्स दैट आई वांट द गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट, ठीक है। तो कुछ मेरे डिमांड्स हैं जो कि गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल द डिमांड्स ये थे कि आपको फार्मर्स रिफॉर्म्स लेकर आने हैं, यू हैव टू ब्रिंग फार्मर रिफॉर्म्स, ठीक है। देन यू हैव टू गिव अस द लिबर्टी टू मेक आवर ओन डिसीजंस, आपको हमें इतनी लिबर्टी देनी है कि हम अपने खुद के डिसीजंस, पॉलिटिकल डिसीजंस ले पाएं। देन थर्ड, यू हैव टू रिमूव दिस इलेक्टोरेट सिस्टम दैट यू आर ब्रिंगिंग अप अगेन एंड अगेन इन ऑर्डर टू डिवाइड हिंदूज एंड मुस्लिम्स। हिंदूज और मुस्लिम्स को डिवाइड करने के लिए जो आप प्लानिंग कर रहे हो ना इलेक्टोरेट सिस्टम लाने की कम्युनलिज्म के बेसिस पे, यू हैव टू रिमूव इट, ठीक है। एंड यू हैव टू गिव द नेशनलिस्ट लीडर्स द चांस टू स्पीक अप फॉर देमसेल्व्स। आपको नेशनलिस्ट लीडर्स को ये चांस देना है कि वो खुद के लिए बोल सकें, सो दैट दे कैन रिप्रेजेंट द इंडियंस, ठीक है। यू कैन नॉट सप्रेस आवर वॉइस, आप हमारी आवाज़ को दबा नहीं सकते। So these were certain demands of Gandhi ji which he wanted the government to accept. So he launched civil disobedience movement. He said we are not going to obey you until and unless you accept our demand. आप हमारे डिमांड जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे हम आपकी बात ही नहीं सुनेंगे। डिसोबीडियंस का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डिसोबीडियंस? व्हेन यू आर डिसोबीडियंट, व्हेन यू आर नॉट लिसनिंग टू समबडी, ठीक है। सो पीपल दे गेव अप देयर जॉब्स, पीपल स्टार्टेड स्टॉप्ड पेइंग द टैक्सेस, लोगों ने टैक्स पे करने बंद कर दिया, अपनी जॉब्स दे दी, ठीक है, छोड़ दी, अपने टाइटल्स, अपने ऑनर्स जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिए थे वो वापस कर दिए, तुम ही रखो, ठीक है। पॉइंट क्लियर? नाउ व्हाट हैपेंड फ्रॉम 12th of March till 6th of April 1930 महात्मा गांधी जी स्टार्टेड डांडी मार्च। उन्होंने डांडी मार्च स्टार्ट किया, ठीक है। और इन्होंने यहाँ पर इस अंडर द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ही ब्रोक द सॉल्ट लॉ, ठीक है। नाउ सॉल्ट एट दैट टाइम
इट वॉज अ कमोडिटी विच वॉज वेरी हाईली प्राइस्ड. आपको पता है सॉल्ट, नमक की कितनी ज़रूरत होती है. यू ऑल नो दैट सॉल्ट इज रिक्वायर्ड इन योर डे टू डे डाइट, इन योर स्टेपल डाइट. इट इज़ अ मैंडेटरी एसेंशियल आइटम. एसेंशियल होता है ना. विदाउट सॉल्ट यू कैन नॉट हैव द इंजॉय द टेस्ट ऑफ द फूड. ठीक है, तो सॉल्ट ही है जिसकी वजह से आप खा पाते हो खाने को. ठीक है, तो अब जब सॉल्ट को ही बिल्कुल महंगा कर देंगे तो कॉमन पब्लिक बेचारा कैसे अफोर्ड कर पाएगा. If you will just skyrocket the prices of salt, how will the common public, common people will intake salt, will purchase it, right? And it was forbidden for the Indians to make salt from the oceanic regions, from the sea regions, coastal regions. तो ये भी मना किया गया था, प्रोहिबिशन लगाया गया था कि आप ओशनिक रीजन्स, कोस्टल रीजन्स पे नमक नहीं बना सकते. सो व्हाट ही डिड, ही स्टार्टेड दिस डांडी मार्च एंड ही ब्रोक द सॉल्ट लॉ. सबसे पहले इन्होंने क्या किया, सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया. कैसे? बाय मेकिंग सॉल्ट. On 6th of April 1930 he broke the salt law by producing salt, manufacturing salt. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया. एंड अंडर दिस मूवमेंट ना द कॉलेज स्टूडेंट्स ऑल्सो लेफ्ट देयर स्टडीज. कॉलेज स्टूडेंट्स ने भी महात्मा गांधी जी को ज्वाइन कर लिया, अपनी पढ़ाई छोड़ दी. दे स्टार्टेड बॉयकॉटिंग, राइट इट डाउन. दे ऑल्सो स्टार्टेड बॉयकॉटिंग द फॉरेन प्रोडक्ट्स, द फॉरेन क्लोथ्स. ठीक है, फॉरेन क्लोथ्स को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया. दे स्टार्टेड बर्निंग दी फॉरेन शॉप्स. जो भी छोटी छोटी ब्रिटिशर्स की शॉप्स हुआ करती थी उनको जलाना शुरू कर दिया. विमेन ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट. औरतों ने भी पार्टिसिपेट किया. एंड दे वर बर्निंग द गवर्नमेंट लिकर शॉप. जो अल्कोहल की शॉप्स हुआ करती थी, ठीक है, उनको भी बर्न करना शुरू कर दिया. सो व्हाट हैपेंड दैट इन 1930 लॉर्ड अर्विन्स गवर्नमेंट कॉल्ड अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. अब हुआ क्या, 1930 में ही द गवर्नमेंट वॉज ऑफ लॉर्ड अर्विन. गांधी अर्विन पैक्ट के बारे में आपने सुना होगा. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट गांधी अर्विन पैक्ट. ओके, सो लॉर्ड अर्विन व्हाट ही डिड, ही कॉल्ड गांधी जी, ही कंडक्टेड अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. इन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कंडक्ट किया. ठीक है, एंड इन दिस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंडन, ठीक है, ही कॉल्ड द लीडर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड गांधी जी. गांधी जी को इन्वाइट किया और इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स को इन्वाइट किया. Let me know in the comment section when was Indian National Congress established. Comment section में बताएं Indian National Congress को कब establish किया गया. Very good, 1885. Very good, it was established in 1885. ठीक है, so to make sure that Congress participates in this round table conference, a pact was signed. एक पैक्ट साइन करने की बात की गई and the pact was signed with गांधी जी in 1931. ठीक है, it was known as the Gandhi Irwin Pact. इसका नाम था गांधी अर्विन पैक्ट. एंड दिस पैक्ट सेड, इस पैक्ट ने क्या क्या कहा, व्हाट वर द पॉइंट्स इन दिस पैक्ट, दैट ऑल द प्रिजनर्स. ठीक है, आप यहाँ पर लिख सकते हो, दिस पैक्ट फोकस्ड ऑन, राइट इट डाउन, यहाँ पर लिख लो, दैट इट वॉज नोन एज गांधी अर्विन पैक्ट. इसको हम गांधी अर्विन पैक्ट बोलते हैं. एंड इट फोकसेस ऑन the release of all the political prisoners. अभी तक ब्रिटिशर्स ने जिन जिन नेशनलिस्ट लीडर्स को प्रिजनर बनाकर रखा हुआ है, ठीक है, हम उनको रिलीज करेंगे. ब्रिटिशर्स they had arrested many political leaders. now they will release them. उनको रिलीज कर देंगे, छोड़ देंगे. सेकेंड पॉइंट वॉज, ये तो हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट वॉज कैंसिलेशन ऑफ ऑप्रेसिव लॉज. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द सॉल्ट टैक्स. इस तरीके के जितने भी ऑपरेसिव लॉज हैं उनको कैंसिल कर दिया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल दी सॉल्ट टैक्स. पॉइंट क्लियर. तो दिस वॉज द कंडीशन ऑफ द डिमांड्स अंडर गांधी अर्विन पैक्ट विच वर फुलफिल्ड. ठीक है, अब इसके बाद हमारा आता है 1942 का टाइम पीरियड विच सॉ द क्विट इंडिया मूवमेंट. भारत छोड़ो आंदोलन. क्विट इंडिया मूवमेंट मीन्स भारत छोड़ो आंदोलन, wherein Indians they were requesting Britishers to leave India, just quit India, go out of India. Again महात्मा गांधी जी he launches this particular movement. ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने लॉन्च किया क्विट इंडिया मूवमेंट को when in August 1942. अगस्त 1940 जो है it is also known as the August क्रांति event. ठीक है, तो now this movement was launched during, write it down, it was launched during the Second World War. Second World War के दौरान इसको लॉन्च किया गया था. Why? To drive out the Britishers, to drive out the Britishers of India. ठीक है,
भारत से ब्रिटिशर्स को बाहर निकालने के लिए ये मूवमेंट लॉन्च किया गया था. And in this movement only Mahatma Gandhi ji gave a very famous speech. This is important for prelims. This is known as do or die speech. ये काफ़ी फेमस स्पीच थी जो उन्होंने दी थी. उन्होंने कहा था कि now is the time, either we can do something or we can lay our lives out for the freedom of the India. अब तो कुछ करना या मरना, यही हमारे पास ऑप्शन है. इसके अलावा वी डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन. ठीक है, पॉइंट क्लियर? यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया. चलो आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड. So he delivered the do or die speech over here. ठीक है, and as a result, write it down that as a result, इस स्पीच का रिजल्ट क्या था? That the entire members of INC, ठीक है, Indian National Congress, the entire members of INC, ठीक है, they were arrested. ठीक है, अब बिकॉज आप सीधा सीधा ब्रिटिशर्स को बोल रहे हो कि यहाँ से भागो, you are directly pointing out to the Britishers, go away from here. ठीक है, so what will the Britishers do? सबको अरेस्ट कर लिया. महात्मा गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी अरेस्ट कर लिया. ठीक है, so now as a result the entire members of INC they were arrested. ठीक है, उनको अरेस्ट कर लिया गया. and by the end of second world war के एंड में क्या होता है? ब्रिटिश गवर्नमेंट क्लियर दैट दे विल हैंड ओवर द पावर्स टू द इंडियंस. सो बाय द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर Britishers told that we will do the power transfer. हम power transfer कर देंगे, don't worry, we will leave India. And Mahatma Gandhi ji, when Britishers announced this, he took back the movement. इन्होंने इस movement को finally call off कर दिया, cancel कर दिया. When Britishers gave us the assurance that yes, they are returning India to us. Therefore, these are the major movements which were launched by Gandhi ji. Always remember, any movement launched by Gandhi ji had an essence of non-violence. ये मत question करने बैठ जाना कि violence था कि non-violence था. क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, क्योंकि जहां गांधी जी हैं वहां उनके हमेशा यही कोशिश रहती थी कि नॉन वायलेंस रहे. पॉइंट क्लियर? नाउ एक और क्वेश्चन आ सकता है आपके एथिक्स में. इन एथिक्स ऑल्सो वन मोर क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड. एथिक्स एंड एसे, ठीक है, इन दोनों पेपर्स में दो गांधी जी के ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है दैट व्हाट आर दी गांधीयन फिलोसफीज, राइट इट डाउन, व्हाट आर दी गांधीयन फिलोसफीज which one could adopt during the time of COVID-19 क्राइसिस. कोविड-19 का ये जो क्राइसिस चल रहा है, इस दौरान गांधी जी की ऐसी कौन सी फिलोसफीज हैं जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं? व्हाट आर दी फिलोसफीज ऑफ गांधी जी दैट यू कैन अडॉप्ट ड्यूरिंग द कोविड-19 क्राइसिस? ठीक है, सो द फर्स्ट फिलोसफी कैन बी स्वदेशी. येस और नो? ये है गांधी जी की पहली फिलोसफी जिसको हम बोलते हैं स्वदेशी, विच वी कैन अडॉप्ट ड्यूरिंग द कोविड-19 क्राइसिस. नाउ स्वदेशी, राइट इट डाउन, इट lays the emphasis on, ठीक है, it lays the emphasis on, write it down, indigenization. ठीक है, it lays the emphasis on indigenization यानी कि आत्मनिर्भर भारत, सब कुछ भारत में ही बनना चाहिए, मेड इन इंडिया. ठीक है, and it reduces the dependence on others. वैसे भी हमारे इंटरनेशनल रूट सारे ब्लॉक हो रहे हैं. ठीक है, ड्यूरिंग द लॉकडाउन द इंटरनेशनल रूट्स दे वर ब्लॉक्ड. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया. सो द एम्फोसिस वाज ऑन इंडिजिनाइजेशन and reduces the dependence on others. Next important philosophy of Gandhi ji. Now see, in this Swadeshi philosophy, we have been dependent on China a lot. हम चाइना पे ना बहुत डिपेंडेंट रहे हैं. ठीक है, we have been dependent on China a lot and that is why we do not realize that we are filling up their treasury. ठीक है, हम उनकी ट्रेजरी, उनके खजाने को भर रहे हैं उनके प्रोडक्ट्स खरीद कर. ठीक है, सो नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फिलोसफी होती है स्वच्छता. What is स्वच्छता? It means hygiene. स्वच्छता means cleanliness, hygiene, साफ सफाई. ठीक है, so that is स्वच्छता. So गांधी जी practiced and promoted personal hygiene. गांधी जी ने हमेशा क्या प्रमोट किया? पर्सनल हाइजीन को प्रमोट किया. And during COVID-19 crisis, what is the first order that is given to all of us by the WHO and government? To wash our hands. ठीक है, समझ आ रही? ठीक है, so स्वच्छता means sanitization, washing your hands,
अगेन एंड अगेन, जब भी आप किसी बाहर की चीज़ के कॉन्ट्रैक्ट में आते हो, अपने आप को हाथों को धोना है, ठीक है। इफ़ यू आर स्नीजिंग, डू नॉट स्नीज इट इन ओपन, ऐसे करके स्नीज करना है, ठीक है, अपने माउथ को कवर करके स्नीज करना है, ठीक है। पॉइंट क्लियर? सो स्वच्छता मीन्स पर्सनल हाइजीन, ठीक है, इट मीन्स पर्सनल हाइजीन, दिस इज इंपॉर्टेंट। प्लस वी ऑल्सो हैव टू फोकस ऑन कम्युनिटी सैनिटाइजेशन, ठीक है, हमें कम्युनिटी सैनिटेशन पे भी वर्क ऑन करना है, ठीक है। सो दिस हैज बीन एडवोकेटेड एंड एडवाइज टू एवरीबडी इन इंडिया ड्यूरिंग कोविड-19 क्राइसिस। द थर्ड फिलोसफी ऑफ गांधी जी, सर्वोदय, ये बहुत फेमस फिलोसफी है गांधी जी की, इट हैज बीन आस्क्ड इन प्रीलिम्स ऑल्सो, ठीक है। सो व्हाट इज सर्वोदय? सर्वोदय का मतलब क्या होता है? सर्वोदय मीन्स डेवलपमेंट ऑफ ऑल, राइट इट डाउन। सर्वोदय मीन्स डेवलपमेंट ऑफ ऑल, ठीक है। पॉइंट क्लियर? सो नाउ सर्वोदय की बात करते हैं। सर्वोदय मीन्स डेवलपमेंट ऑफ ऑल, ठीक है। सो यू शुड नॉट जस्ट फोकस ऑन योर ओन डेवलपमेंट, दैट इज सेल्फिशनेस। सर्वोदय मीन्स अपलिफ्टिंग एवरीबडी, सबको अपलिफ्ट करना, ठीक है, सबको डेवलप करना। पॉइंट क्लियर हो रहा है यहाँ तक? सो सर्वोदय मीन्स अडहेरिंग टू, राइट इट डाउन, इट मीन्स अडहेरिंग टू दिस प्रिंसिपल, ठीक है, adhering to this principle would have mitigated the troubles faced by the migrants, the people who were migrating, ठीक है, the laborers who were going back to their villages and the poor during the lockdown। अब क्या हो रहा था लॉकडाउन के दौरान ना, द पीपल वर गोइंग बैक टू देयर ओन विलेजेस ऑन फुट, ठीक है, पैदल चल रहे थे इतनी दूर, दिल्ली से बिहार जा रहे हैं पैदल, पीपल वर गोइंग बैक टू देयर विलेजेस, दैट टू ऑन फुट, राइट। दे वर हंग्री, दे वर थर्स्टी एंड नोबडी वाज देयर टू हेल्प। द मीडिया पीपल, दे वर कमिंग फॉरवर्ड टू कवर ऑल द इंसिडेंट्स, ऑल द इवेंट्स। आप देख रहे हो सबके मुंह पे कैमरा घुसा कर पूछ रहे हैं कि आपको कैसा फील हो रहा है, ठीक है। द मीडिया पर्सन्स, दे वर बिकमिंग सो रूथलेस ड्यूरिंग द लॉकडाउन, दे वर इंसर्टिंग द कैमरा ऑन द फेस ऑफ द लेबरर, ठीक है, एंड आस्किंग देम हाउ डू यू फील, व्हाट डू यू थिंक, अप्लाई योर कॉमन सेंस, हाउ विल दैट पर्सन फील। कॉमन सेंस तो यूज करो कि वो इंसान कैसा फील कर रहा होगा, उसके मुंह पे कैमरा रखकर पूछ रहे हो कैसा लग रहा है, ठीक है। सो मेनी पीपल ड्यूरिंग लॉकडाउन केम फॉरवर्ड टू हेल्प दीज पीपल, टू प्रोवाइड देम फूड। काफी लोग अपनी जान पर खेलकर, रिस्क लेकर बाहर निकले उन लोगों को खाना खिलाने, पानी पिलाने, ठीक है। मेनी एनजीओज, मेनी सोसाइटीज, मेनी पीपल हेल्प्ड देम, ठीक है। सो दिस इज नोन एज सर्वोदय, इसको हम बोलते हैं सर्वोदय। दिस क्वालिटी इज नोन एज सर्वोदय। व्हेन यू आर हेल्पिंग पीपल, व्हेन यू आर हेल्पिंग देम अपलिफ्ट देमसेल्व्स, ठीक है, दैट इज सर्वोदय। अब सिर्फ सोनू सूद मत करना, वो न्यूज में रहे हैं तो आप सिर्फ सोनू सूद को टारगेट करोगे कि हाँ उन्होंने ही किया। देयर आर मेनी अदर एनजीओज, गुरुद्वाराज, are you forgetting the gurudwaras also who were coming forward to help these people? They were providing them shelter also. Are you forgetting the roadside dhabas who were helping these people? जो रोड साइड ढाबास थे, छोटे छोटे ढाबास, खुद टूटे फूटे हैं बट इन लोगों को खाना खिला रहे थे, ठीक है। तो किसी एक को ही ऊपर नहीं बिठा देना है, सबकी तरफ देखना है, दिस इज सर्वोदय, इसी को तो सर्वोदय बोलते हैं, ठीक है। डोंट फॉरगेट द स्मॉल एनजीओज विच वर कमिंग फॉरवर्ड, छोटे छोटे एनजीओ सामने आ रहे थे, दे वर मेनी नेबरहुड्स विच वर हेल्पिंग पीपल, ठीक है। हमारे नेबरहुड में भी काफी लोगों ने खाना प्रिपेयर करके सप्लाई किया था, ठीक है। सो दीज आर द एफर्ट्स व्हेन द सोसाइटी एट लार्ज कम्स फॉरवर्ड, जब पूरी सोसाइटी मिलकर साथ आती है, ठीक है, और हेल्प करती है एक दूसरे की, दैट इज सर्वोदय। व्हाट इज सर्वोदय? व्हेन द सोसाइटी एट लार्ज कम्स फॉरवर्ड, ठीक है। फोर्थ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या होगा? फोर्थ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होगा आपका, इट विल बी, ठीक है। सो नाउ दीज आर द 3 मेन फिलोसफीज ऑफ गांधी जी दैट यू कैन यूज इन कोविड-19 क्राइसिस। ये 3 फिलोसफीज हैं गांधी जी की जिनको आप कोविड-19 क्राइसिस में हम यूज कर सकते थे। ऑलवेज रिमेंबर, ये याद रखिएगा कि ये जो फिलोसफीज हैं ये क्वेश्चन एसे में और एथिक्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन एसे एंड एथिक्स पेपर। एंड ऑलवेज रिमेंबर, व्हेन वी स्टडी सर्वोदय, इट इज नॉट एन इंडिविजुअल एफर्ट, योर इंडिविजुअल एफर्ट विल नॉट बी काउंटेड इन सर्वोदय। सर्वोदय में इंडिविजुअल एफर्ट नहीं काउंट किया जाता, इट इज अबाउट ऑल, दैट मीन्स कम्युनिटी एफर्ट। समझ आ रही है बात? दिस इज अबाउट कम्युनिटी एफर्ट, ठीक है। सो अगर आप आई वर्ड यूज करते हो, दैट इज नॉट सर्वोदय, ठीक है। जब आप अस और वी वर्ड यूज करते हो, दैट इज सर्वोदय। पॉइंट क्लियर हो रहा है या नहीं?
ठीक है, पॉइंट क्लियर। जब आप आर वर्ड यूज करते हो, अस वर्ड यूज कर सकते हो, वी वर्ड यूज करते हो, वी हैव हेल्प्ड पीपल, ठीक है, दिस इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय अस, ठीक है, दिस एनजीओ इज आर एफर्ट, ठीक है, दिस हेल्प इज आर एफर्ट, तो वो कम्युनिटी बेस्ड एफर्ट सर्वोदय में आएगा, ऑलवेज रिमेंबर दिस, ठीक है। सो दिस वाज टुडेज क्लास, ये थी आपकी आज की क्लास। नाउ इफ यू आर इंटरेस्टेड इन अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, यू कैन यूज कोड Sharma20 to gain 10% discount on your subscription. I am taking history classes ancient, medieval and modern. मैं हिस्ट्री की क्लासेस ले रही हूँ, ठीक है, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, ठीक है। तो आप Sharma20 कोड यूज करके 10% डिस्काउंट ले सकते हो आपके अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन पर। एंड द नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन, सो दिस इज द कोड, 10 AM नेक्स्ट क्लास होने वाली है कल 28 दिसंबर को, 1919 इवेंट्स। Thank you everyone for participating in the class.